All right. Group 17 elements. Uh, Most of it is something that you already know from IGCSE, halogens, salt-forming compounds. Okay. The top four elements are the ones that we usually discuss: chlorine, chlorine, bromine, iodine. There are यहाँ पर उसकी electronic configurations भी हैं. We know they are all non-metals. We know they exist as diatomic molecules: F2Cl2Br2I2. Single covalent bond है एसिटिन चूंकि radioactive होता है and we know a very little about acidin, so we don't usually talk about it. But the important part is that they exist differently at room temperature. That is because of their intermolecular forces and because of their structures and a number of electrons present in them. The intermolecular forces between them are different. Having the biggest size, iodine has the strongest intermolecular forces and it exists as a solid at room temperature. Gray black solid, purple vapors because it sublimes. Bromine exists as a liquid. That's the only liquid non-metallic non-metal at room temperature in the periodic table. Chlorine being of small sizes exists as different colored gases, right? So let's move forward. This also gives you about an idea about the melting boiling points. The atomic radii give you an idea about what kind of structure would they have. I'm talking about the electronic structure. Okay, so this also gives us the idea about volatility. Remember, volatile means how easily they evaporate. Since they're gases, of course they're very volatile. That's because they're gases at room temperature, and of course the volatility is going to decrease down the group. That's why iodine is present as a solid um, at the bottom of this group. They have only weak van der Waals forces. That's why we use the word IDID forces before. So forces are going to increase. Increasing forces के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास आईडीआईडी फोर्सेस जो होती हैं स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस. व्हाई? बिकॉज जैसे ही एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं हम जानते हैं कि एक दूसरे को ज्यादा अच्छा डिस्टॉर्ट करते हैं. इफ दे हैव अ बिगर electronic structure or electronic cloud, so the attractive forces would be stronger. Moving ahead, reactions. Now, halogens, all of them, since they have 7 electrons in their outermost shell, as the group numbers suggest, so they would only need one electron to become a stable ion. That would be a -1 charge place ion. So ionic reactions are pretty common, and that's why they are actually salt-forming species. ज़्यादा salts में आपको halogens ही मिलते हैं, ठीक. उन्होंने उसके लिए proper reactions, example of calcium chloride and the oxidation state, how it gets that oxidation state will be mentioned किया हुआ है. But in the presence of a more electronegative species, this might act a little differently. क्योंकि हमने ये बात यहाँ पर इसी अंदाज में की हुई है, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पीछे रिडॉक्स वाले चैप्टर में जाएं तो हमारे पास HClO जैसा एसिड भी है. Now O is more electronegative than both H and Cl. So आप notice करेंगे this one has a +1 charge, this one has a +1 charge, this one has a -2 charge. In the presence of a more electronegative species, then it tends to behave somewhat differently. And that's what happens if a more electronegative species or an atom is present in a compound. It actually forces the electronegative ones to behave a little bit different. So is chlorine doing this? So in the presence of oxygen or in the presence of chlorine, chlorine might behave differently or other halogens might behave differently. Hence, this kind of structure may exist. ऑल्दो यहाँ पे तो बुक बड़ा सिंपल सा ये बताकर इसे खत्म कर देती है, ठीक है, लेकिन ये चीज क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में पीछे ये रिडॉक्स में वाले चैप्टर में एग्जिस्ट करता है. आई माइट बी रॉन्ग विद द चैप्टर नंबर, बट डेफिनेटली ये रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से है, ठीक है. So keep the fact in mind. Moving on, keep something in mind that this reaction has been quoted in an example and it discusses that any halogens in this group, if they're present at top, more rigorous or vigorous or reactive their reactions will be. If they're present at bottom as comparison to chlorine, of course उनके reactions less vigorous होते जाएंगे, ठीक है, which gives us the important fact that halogens get less reactive down the group. Now remember, this goes true for all non-metals. Non-metals down the group less reactive होते जाते हैं.
अपोजिंगली मेटल्स डाउन द ग्रुप मोर रिएक्टिव होते चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी होती है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की कि वो बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, ठीक है। तो फ्लोरीन जो होगा उस वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। देन कम्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपके सामने स्टेटेड भी हैं, यू गेट द आइडिया, ठीक है। आप इसके लिए फैक्टर डिस्कशन कैसे करेंगे? फैक्टर डिस्कशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए की थी। तो फैक्टर डिस्कशन हमेशा एक ही तरतीब से होती है। सबसे पहले आप न्यूक्लियर चार्ज डिस्कस करते हैं, सेकंड नंबर पे आप एटॉमिक रेडियस डिस्कस करते हैं, या डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस आप वो डिस्कस करते हैं। थर्ड पे आप फिर शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फैक्टर्स डिस्कस करते चले जाते हैं। अब इस केस में अगर आप इनमें से किसी को भी आपस में कंपेयर करेंगे, रिमेंबर आपके पास इन तमाम केसेस में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है डाउन द ग्रुप, आपके पास एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज कर रहा होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। और आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा होता है। अब यहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक। लेकिन एटॉमिक रेडियाई और शील्डिंग इफेक्ट के हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करना चाहिए। अब मैं आपके लास्ट सेशन में आपको ये बता चुका हूँ कि जब हम वर्टिकल कोई भी ले रहे होते हैं ये फैक्टर कैलकुलेशन, तो आपके पास ये दोनों मिलाकर इनको हम बॉस बुलाते हैं, ठीक है। ये दोनों फैक्टर मिलकर हमेशा इसे आउटशाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही होगी। ये खुद इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन इनका अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज का अफेक्ट आता है, एटॉमिक रेडिया और शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज का अफेक्ट आता है। सिंस दीस बोथ आर द बॉसेस एंड दे आउटशाइन और आउटवे न्यूक्लियर चार्ज, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटवे हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की ज्यादा आयरन कम। अब जब हम ये बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उसने लास्ट सेंटेंस में उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली नेचर भी बताई हुई है। याद रखिए क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस हो सकते हैं कि रिडक्शन कैपेबिलिटी होती है। और याद रखिए अभी अभी हमने रिडक्शन कैपेबिलिटी मेंशन की है इन द टर्म्स ऑफ गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो ये खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। सिंस दे कैन रिड्यूस इजीली तो दे एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फ्लोरीन इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही छोटे से पोर्शन में इस पेज के और एक ही टेबल के साथ उसने बहुत सारे फैक्टर्स और कॉजेस भी और इफेक्ट्स भी डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो कीप इन माइंड रिडक्शन का इफेक्ट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इफेक्ट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट हो, ये सारे इफेक्ट्स हैं। कॉजेस क्या हैं? न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक रेडिया है, शील्डिंग इफेक्ट है, कौन सा किसको आउटशाइन कर रहा है, सब याद रखने की कोशिश करनी है। I've explained each and every single one of them, whichever is included in the page, and they usually discuss the same in exams. Okay, moving on. एविडेंस ऑक्सीडाइजिंग पावर का हम किस तरह से देते हैं? उसके लिए बेहतरीन तरीका आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो हमने एक रूल हमने कैम्ब्रिज में आईजीसीएसई में पढ़ा होता है वो उन्होंने ऊपर ऊपर लिख लिया। मोर रिएक्टिव हेलोजन कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स हैलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी आपके पास ग्रुप में ऊपर होगा वो नीचे वाले को सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। विच मीन्स जो ऊपर वाला होगा वो रिड्यूस करना पसंद करेगा और ऑब्वियसली दूसरे को वो उसके ऑपोजिट पे पुश करेगा। तो दिस क्लियरली कैन बी प्रूवन फ्रॉम एन इक्वेशन। आप नोटिस करें क्लोरीन का रिएक्शन जो सोडियम ब्रोमाइड के साथ होता है, we form sodium chloride and bromine is displaced out, ठीक है। वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है into pure bromine form और ये डिस्प्लेसमेंट की बहुत सी एग्जाम्पल है। अब नोटिस करें कि यहाँ पर Cl जीरो से जा रहा है all the way to -1, खुद रिड्यूस हो रहा है और इसके जो आयंस हैं उन्हें ऑक्सीडाइज कर रहा है from -1
टू जीरो। ठीक है, तो जो बात हम अभी अभी पीछे कर रहे थे वो बात उसने प्रूव कर दी। ये चीज उसने नीचे आयनिक इक्वेशन के अंदर भी कोट की हुई है, लेकिन आयनिक इक्वेशन में चूंकि यूजुअली जीरोस नहीं होते तो आई डिस्प्लेड देम ऑन टॉप। ठीक, तो कीप इन माइंड, क्लोरीन ये काम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों के साथ कर सकेगा। क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कर सकेगा। ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन के साथ कर सकता है। आयोडीन ये काम किसी के साथ नहीं कर सकता। तो इफ एनी opposing इक्वेशन इज गिवन, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये वाली इक्वेशन दे दी जाती है कि आपके पास I2 का रिएक्शन हो रहा है KBr के साथ, तो आपने इसे ने फिल नहीं कर देना है। यू नीड टू नो कि आपने इसे नो रिएक्शन से फिल अप करना है। ये नहीं करना कि 2Ki बना दें और Br2 बना दें, नो, बिकॉज iodine being less reactive cannot displace bromine। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो इस चैप्टर में नहीं लिखी हुई, रिडॉक्स चैप्टर में की थी, आपने नोटिस किया होगा, मैं आयोडीन डिस्प्लेसिंग ब्रोमीन की बात कर रहा हूं। हम कहीं पर भी ये नहीं कहेंगे, आपको बुक में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने भी नहीं कहा। आफ्टर 2018 इसके ऊपर कैम्ब्रिज भी स्ट्रिक्ट हो गया है। आप ये नहीं कह सकते कि आयोडीन डिस्प्लेस्ड ब्रोमाइड आयन। नो, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग इट। ये नहीं कहा जाता। इट्स एक्चुअली द कन्वेंशन। ये कहने में कुछ गलती एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन whenever we fix a convention, every teacher, every student, every researcher or scientist has to do the same on this planet। तो फिर हर किसी को वही कहना पड़ता है। तो अगर आपने कहीं पर भी पेपर में कह दिया कि आयोडीन डिस्प्लेसेस ब्रोमाइड आयन, क्योंकि ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, दिस इज पॉसिबल, यू डू गेट द प्रोडक्ट। अगर आप कह देंगे क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमाइड आयन, दिस वुड बी रॉन्ग। पहले इसके नंबर नहीं कटते थे। अब चूंकि कैम्ब्रिज इसे क्लियरली कह चुकी है, ये आपकी बुक का हिस्सा बन चुका है, चैप्टर 7 में बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, रिडॉक्स वाले चैप्टर में। तो अब आप ये गलती करेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। आपको क्लोरीन और ब्रोमीन या क्लोरीन और आयोडीन यही वर्ड्स यूज करने हैं। आप नेगेटिव आयन का नाम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लैरिफाइंग दैट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, उनकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मैंने वो बता दी है, वो डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप 17, वो भी हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। कलर्स हेलोजन मॉलिक्यूल्स के सोल्यूशन में डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करना पॉजिटिवली इन डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो इसमें से ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव होने के बाद भी हमारे पास जो है ना ऑरेंज ब्राउन कलर दे रहे होते हैं। अब अगर आप इसको नोटिस करें तो इसका एंड रिजल्ट ऑरेंज ब्राउन होता है, इसको नोटिस करें इसका एंड रिजल्ट भी ऑरेंज ब्राउन सा ही हो जाता है, या येलोइश ब्राउन होता है। ऑरेंज ब्राउन और येलोइश ब्राउन में फर्क करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इन डाइल्यूट कंडीशन। ठीक है, तो वो वही बात नीचे कर रहा है कि इस ऑब्जर्वेशनल स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे पास ये मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको करें कलरलेस लिक्विड साइक्लोहेक्सेन के अंदर, वाटर के अंदर तो ये इमिसिबल हैं, तो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं। अगर उसमें डिजॉल्व करें तो साइक्लोहेक्सेन वाला हमें क्लियरली डिफरेंट कलर्स बताता है। इसलिए हम अमूमन ऐसा कहते हैं कि हम इसे जो है वो मिक्स करते हैं साइक्लोहेक्सेन में से कलर्स लेने की। अच्छा, एक और बात, अगर आप ऐड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को आफ्टर मिक्सिंग द हेलोजन हैलाइड सॉल्यूशन, ठीक है, टेकिंग द मिक्सचर, ये रिएक्शन मिक्सचर को अलाउ करेगा कि पहले वो दो लेयर्स में जो है ऑफ कोर्स सॉल्यूशन पानी का बना होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो इमिसिबल होगा, तो पहले तो वो दो लेयर्स बनेंगी। उसके बाद इसमें क्लियरली क्योंकि वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, कंपोनेंट एक तो दूसरी लेयर में मूव कर सकते हैं, वो मूव करेंगे और हमारे पास कलर्स फॉर्म होंगे। ठीक, Now this should give you the idea, हमारे पास layers बनी हुई हैं और वो कलर्स ऊपर बने हुए हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई कि आपके पास पानी के सोल्यूशन को डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन के अंदर ही डाल दिया गया, जो भी आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन आया था साइक्लोहेक्सेन में डाल दिया। Now let me clarify, water has a high density, cyclohexane has a lower density। वाटर नीचे आ जाता है, वो नीचे शो हुआ है, साइक्लोहेक्सेन ऊपर आ जाता है, दो सेपरेट इमिसिबल लेयर्स फॉर्म हो गई। अब इसके अंदर चूंकि क्लोरीन डिजॉल्व नहीं हो सकता, क्लोरीन ऑटोमेटिकली डिफ्यूज करता है इन द अपर लेयर, क्योंकि उसमें ज्यादा सॉलेबल होता है। क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, जो भी हो, हेलोजेंस आर मोर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो ऊपर डिफ्यूज अप कर जाते हैं। ठीक है, जब वो डिफ्यूज करते हैं वो अपने प्रॉपर डिफरेंशिएटिंग कलर शो करते हैं। सो इट्स प्रिटी क्लियर, साइक्लोहेक्सेन की ऊपर वाली लेयर की वजह से आपको डिजॉल्व क्लोरीन
पेल ग्रीन कलर में, इसी तरह ब्रोमीन ऑरेंज कलर में, और आयोडीन पर्पल कलर में नजर आ रही होगी, ठीक है। पेल ग्रीन इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है, लेकिन ऑरेंज और पर्पल इतने वाजे कलर होते हैं कि वो पता चल जाते हैं। रिमेंबर दीज कलर्स, दे आर अ पार्ट ऑफ ऑल थ्री पेपर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। Halogens, hydrogen के साथ reaction. ठीक. This is basically to give you an idea about the decrease in reactivity from top to bottom in a group. तो हर वो एडजेक्टिव जो इसको क्लियरली बता सकता हो उसने अच्छी तरह मेंशन किया हुआ है। Chlorine reacts explosively even in cool, dark conditions. Most reactive non-metal on the planet, of course, undoubtedly will go for that. ठीक है। ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा एक्सप्लोसिवली अंडर सनलाइट, ठीक। आप जानते होंगे ये रिएक्शन जो है ना वो क्योंकि फोटोकेमिकल होता है तो वो उसमें आसानी से हो जाता है। वेल, हम ये रिएक्शन हीट की बेस पर भी कर सकते हैं, ये रिएक्शन यूवी से भी पॉसिबल है, इस तरह से दूसरी पॉसिबिलिटीज भी उन्होंने शो की हुई हैं। अपॉन कंटिन्यूस और स्लो हीटिंग हमारे पास हो जाता है ब्रोमीन का रिएक्शन। कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी हमारे पास आयोडीन का रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है, व्हिच मींस आयोडीन रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर या रिवर्सिबल से अंदाजा हो जाना चाहिए, ठीक। हाइड्रोजन लाइट जो फॉर्म करते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिफरेंट है। हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज हो सकता है एक रेड हॉट फायर, अगर हम सैंपल के अंदर इंसर्ट करें आपको पर्पल फ्यूम्स इसके नजर आएंगे। बाय कॉन्ट्रास्ट हाइड्रोजन क्लोराइड इतने आसानी से डीकम्पोज नहीं होते, उसने टेम्परेचर्स भी कोट किए हैं। नाउ दिस शुड गिव यू एन आइडिया व्हाई, ठीक है। अब थर्मल स्टेबिलिटी किसी की कम और किसी की ज्यादा होने की जब बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ये हम बहुत पहले बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके होते हैं। इसका एक टच हमने पीरियोडिसिटी के चैप्टर में भी दिया होता है, जो बहुत स्लाइट है लेकिन हमने बात की होती है। याद रखिए बॉन्ड जितना वीक होता है थर्मली उतना ही वो डिस्टेबल होता है और आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो उतना ही थर्मली स्टेबल होगा और उतने ही ज्यादा टेम्परेचर पे जाके या तो डिकम्पोज होगा या समटाइम्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। बाय दैट केस अगर इस सिनेरियो में देखा जाए HF HCl को उसने उस एग्जांपल में कोट किया हुआ है, टेम्परेचर उसने 1500 कोट किया हुआ है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड उतना स्टेबल नहीं है जितना HF और HCl है। HI की तो पहले ही हम थर्मल डिस्टेबलाइजेशन देख चुके हुए हैं, ठीक है। HBr के लिए रेजिस्टेंट होता है डिकम्पोजिशन पे HI की निस्बत। एट 430 डिग्री सेंटीग्रेड क्लोज कंटेनर में 10% ऑफ सैंपल ऑफ HBr डिकम्पोज करता है, जबकि 20% HI डिकम्पोज कर जाता है सेम टेम्परेचर पे, तो वो उससे ज्यादा थर्मली स्टेबल है, ठीक है। which gives us the idea about thermal stabilization, आप most to least देख सकते हैं। अब इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी की बेस पर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप नोटिस करेंगे कि आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी से बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो सकती है, और आप जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है। लेट मी रीडिफाइन। बॉन्ड बनते हुए प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। एनर्जी जिसे हम बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं, ये एनर्जी रिलीज होती है। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, यही एनर्जी इस बॉन्ड को वापस मिलेगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो वो जो बॉन्ड बनते हुए जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है उसे उतनी ही ज्यादा एनर्जी ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड भी होती है बॉन्ड ब्रेकेज के लिए। So bond energy goes in both ways because of this cyclic process. So if it's giving out more energy, definitely a bond is stronger and would be thermally stable to the same extent it gave out the energy for. ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आप नोटिस करें बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो ऑफ कोर्स टॉप पे अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड थर्मली स्टेबल भी होगा। बॉटम पे बॉन्ड एनर्जी कम है तो वो लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी शो करेगा, विच गिव्स यू द आइडिया, ठीक। अब इस केस में थोड़ी सी बात मैं यहाँ से इसके अलावा जो हम चैप्टर 4 में कर चुके हुए हैं वो मैं करता चला जाऊं, ठीक है। अगर आप इनके लिए बात करेंगे, याद रखिए ये तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये चूंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते होंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, और ये इवन आईडी फोर्सेस भी शो करते हैं अगर आप बात करें जो ना विंडो वॉल फोर्सेस के हिसाब से। बाकी ये तीनों जो हैं ये सारे आईडी फोर्सेस शो करते हैं, ठीक है। अब आईडी फोर्सेस गो HI के अंदर स्ट्रॉन्गर होती हैं,
लेकिन चूंकि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है, डिकम्पोज करने के हिसाब से। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रही होगी। ये बात मैं इसलिए मिलाकर साथ कर रहा हूँ कि कभी पेपर में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कशन आती है, और कभी पेपर में कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके थर्मल जो ना स्टेबिलिटी के हिसाब से बात आती है। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट डिस्कशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे, सिर्फ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ओवरकम करके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से होगी। तो इन बातों को अलग-अलग रखना है। इन्हें पढ़ाया भी अलग-अलग चैप्टर्स में जाता है, लेकिन पेपर में समटाइम्स वो अगर ऊपर तले क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ें वो ये कि बच्चा ये कराते हैं लेवल में कि वो मेल्टिंग बॉइलिंग के दौरान समटाइम्स कोवलेंट बॉन्ड भी ब्रेक कराते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। मेल्टिंग बॉइलिंग पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ थर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम ओवरकम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। तो अगर वो डिस्कस करना होगा। यस अब सर। इसमें एक और मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं वो ये कि इसकी रीजन सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से कराते हैं। दो दिस इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट, बट यू कैन नेवर इग्नोर दिस वन। और वो इसकी रीजनिंग सिर्फ इस पे करते हैं। नो, और आई अंडरस्टैंड ये दोनों चीजें ठीक है, लेकिन इससे मिस आउट नहीं करना है, ठीक। उस केस में फिर इसकी डिस्कशन हो सकती है। उसी तरतीब से याद रखिए, आईडीआईडी फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना बड़ा होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से फिल होगा, उतना वो स्ट्रांगली अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारे पास होगा। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स अगर देखे जाएं तो एच एफ के बहुत आउटस्टैंड करते हैं, फिर एच सी एल के कम है, एच बी आर उससे ज्यादा है, एच आई उससे ज्यादा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर आईडीआईडी फोर्सेस। अब ये एक कंपैरिजन बिल्कुल डिफरेंट है, पुराने चैप्टर्स का है, इधर नहीं डिस्कस हुआ, लेकिन मैंने जानबूझ के दोनों पिक्चर सामने रखी हैं, क्योंकि अगर मैं ये सिर्फ ये समझा के गुजर जाता, और अब अगर आप इस पेपर से रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मेल्टिंग बॉइलिंग का भी क्वेश्चन है, और वो ये मटेरियल यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया होता तो एकदम बच्चा फॉल कर जाता है, क्योंकि उसने मोस्ट प्रोबेबली साथ चैप्टर 4 का वो पोर्शन नहीं देखा होता। So I have considered both things, ताकि दोनों चीजें सामने होंगी, you have a complete clearer picture how to handle what kind of question। दोनों मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिए। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछना है, ठीक है। स्टॉप मी राइट देयर एंड आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, सो 12.3 रिएक्शन हैलाइड आयंस के लिए जब आप टेस्ट कर रहे थे हैलाइड आयंस को, तो याद रखिए कि ये टेस्ट की बेसिक्स हमारे पास आईजीसीएसई में भी थी, लेकिन आईजीसीएसई में यूजली हम सिंगल स्टेप करके ना खत्म कर दिया करते थे। वो सिंगल स्टेप इन्होंने यहाँ इक्वेशन में भी दिया हुआ है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हम यूज करते हैं इन एसिडिफाइड फॉर्म। यूजली क्या किया जाता है, एसिडिफाई किया जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड रिस्पेक्टिवली फॉर्म होते हैं। हमारे पास इनके सबके सेपरेट कलर्स हैं। इसका वाइट प्रेसिपिटेट है, इसका क्रीम प्रेसिपिटेट है सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट है, तो हमारे पास इसके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। लेकिन प्रेसिपिटेट से कलर ऑब्जर्वेशनल केमिस्ट्री के हिसाब से लैब में देखना पेपर 3 में, वहां तो हमने बच्चों के तरीके से बता दिया था ना, आपने कलर याद कर लिए, जो एटीपी था लिख दिए कलर, बात खत्म हो गई। ऑब्जर्वेशनल केमिस्ट्री के हिसाब से जब आप लैब में होते हैं तो इनके कलर्स काफी मिलते जुलते लगते हैं। अगर आपके पास तीनों बैक वक्त ना बने हों तो डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर समटाइम्स तीनों बने भी हों तो हमारे पास फिर भी डिफिकल्टी बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो व्हाट डू वी डू, हम डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ऐड करते हैं, मतलब पहले थोड़ा सा वो फिर थोड़ा सा वो ऐड करना है, ठीक है। यूजली कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन हम ज्यादा अमाउंट में ऐड करते हैं कंपेयर टू डाइल्यूट, डाइल्यूट के तो चंद ड्रॉप ही होते हैं सिर्फ, ठीक है। और उससे फिर हमें अंदाजा होता है कि हम आया जो कलर देख रहे हैं जो हमारे लिए डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट था, वो हो भी रहा है या नहीं। एक्स रिप्रेजेंट करता है इसमें हेलाइड आयन को इस इक्वेशन में, ठीक है। नाइट्रेट आयन हम स्पेक्टेटर आयन हैं, तो उनको तो वैसे ही अगर आप निकाल दें और इतना सा आयनिक इक्वेशन लिख लें तो वो आपके आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है डाइल्यूट अमोनिया के साथ, तो वो डाइल्यूट के अंदर ही
इसका मतलब है डिसॉल्व कर जाएंगे जैसे ही आप डाइल्यूट अमोनिया डालेंगे। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। तो क्या हुआ कि जो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट थे वो डाइल्यूट अमोनिया से डिसॉल्व हो जाएंगे, जो आपके पास तीन प्रेसिपिटेट थे वो डाइल्यूट से डिसॉल्व नहीं होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करने पर डिसॉल्व होंगे। जो येलो प्रेसिपिटेट होता है वो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड किसी भी अमाउंट पे डिसॉल्व नहीं होता, वो एज सच प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है। so that's how we differentiate between क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन। ठीक है, तो अगर आपने डाइल्यूट डाला और वो डिसॉल्व हो गया तो क्लोराइड था, डाइल्यूट डाला डिसॉल्व नहीं हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड डाला डिसॉल्व हो गया तो ब्रोमाइड था, डाइल्यूट भी डाला कॉन्सेंट्रेटेड भी डाला फिर भी डिसॉल्व नहीं हुआ, आयोडाइड है। दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट। ठीक है, अब हम नोटिस करें तो बहुत, ये तो हमने पहले से बता दिया ना कि कौन सा वाइट है, क्रीम है, येलो है। अगर आप कोई एक बनाएंगे ना और तीनों सामने नहीं होंगे, लैब में बहुत मुश्किल काम है डिफरेंशिएट करना, इवन फॉर अस, वी नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। डिसॉल्व द रिमेन्स इनसॉल्युबल का एक बहुत अच्छा टेबल उसने यहाँ पर भी बना दिया है, तो इट गिव्स यू द आइडिया। ठीक है, वही वाली बात। उसके बाद रिएक्शन हैलाइड आयन के कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन हम इस चैप्टर में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, आगे चल के फिर हमारे पास इंस्टीट्यूट प्रेपरेशन जो आ रही होती हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर समझेंगे तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंस्टीट्यूट प्रेपरेशन जो होती हैं उसके अंदर ये इक्वेशन आपको हेल्प करेगी। ठीक, तो कंपाउंड जिनके अंदर क्लोराइड ब्रोमाइड आयंस होते हैं ये आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट इंक्लूड्स एवरी सॉल्ट फॉर दीज आयंस, सोडियम सॉल्ट हो, पोटेशियम सॉल्ट हो, दैट डज नॉट मैटर। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे, एक या एक से ज्यादा टॉक्सिक गैस देंगे, या तो फ्यूम कवर्ड में से करते हैं या फिर वेरी वेंटिलेटेड एरियाज में स्टेइंग एट अ डिस्टेंस करते हैं। ठीक है, पीसी के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, यूजुअली टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन होती है बच्चों को करने भी नहीं देते हैं और स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड को डालने पर रिलीज होती है, तो उसको हम उसी तरह से मेकिंग श्योर दैट ऑल कंडीशंस आर फॉलोड फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस हम उसे यूज करते हैं। अच्छा, इसमें बताता चलूँ आपको, यू आर फेमिलियर विद मोस्ट ऑफ व्हाट इज शोन इन दिस डायग्राम, बट दिस specific piece of apparatus is commonly known as thistle funnel। ठीक है, ये thistle funnel होती है, thistle funnel का नेक जो होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, and this allows quantity that can be added in more or less amounts। ठीक है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं और ये हमें ये भी अलाउ कर रहा होता है कि हम ग्रेट डिस्टेंस और सिक्योरिटी अपनी मैनेज कर सकें, इस वजह से हम इसे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, thistle funnel यूजुअली मेंशन नहीं होती है डायग्राम्स में, इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा था। बाकी गैस जार्स, राउंड बॉटम फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब्स, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक, ये रिएक्शन जब हो रहा होता है तो आप नोटिस करें कि आपके पास जो सॉल्ट है वो एज बेसिक बिहेव कर रहा है, वो इधर से एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक, और फिर उस पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इस तरतीब से अगर देखें NaHSO4 HCl, HCl जो है वो गैसियस है, aqueous वगैरह नहीं है, hence the fumes, hence the fume cupboard, hence the well ventilated areas or all those safety precautions। ये white fumes होते हैं, बहुत visible होते हैं, which clearly gives us the idea। हम इस मेथड के सेम रिएक्शन को प्योर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के सैंपल के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा when hydrogen halides decompose into the elements, light part of the molecule in HBr or HI is oxidized। ठीक है, sulfuric acid strong oxidizing agent है, it's not strong enough to oxidize HCl, लेकिन concentrated sulfuric acid HBr HI को decompose भी करेगा और oxidize भी करेगा। जो भी HBr या HI फॉर्म होगा रिएक्शन में बिटवीन सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो अंडरगो करेगा फर्दर ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है हमारे पास कि ये रिएक्शन होना तो यूं चाहिए, इनिशियली होता भी ऐसे है, फिर आपके पास HBr फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो आपके पास ये बनता है। अब इसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि देखें, ये नोटिस करें, ये नोटिस करें, ये नोटिस करें, वन गैस, मोर देन वन टॉक्सिक गैस। ठीक है,
which clearly gives us the idea कि जब उसने यहाँ पर हमारे पास कहा था कि 1 or more टॉक्सिक गैसेस देगा, ठीक है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो वो बात इसलिए थी। अब वो 1 or more टॉक्सिक गैसेस में मोर टॉक्सिक गैस इन क्लोराइड के केस में नहीं आती, ब्रोमाइड या आयोडाइड के केस में आती है। ब्रोमाइड के केस में भी ब्रोमीन और SO2 हो गया, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस है, ये हमें अंदाजा हो गया, ठीक है। अब आते हैं आयोडीन पर। अगर आयोडीन को आप देखें तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन फॉलो होके बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आपके पास सेवरल ऑब्जर्वेशन हैं जो बन सकती हैं, और आयोडीन के क्वेश्चन में समटाइम तो एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पूछते हैं, ज्यादा मार्क्स रखते हैं उसके, और उसी हिसाब से मार्क्स अवार्ड या कट कर रहे होते हैं। तो कीप इन माइंड सिंस ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, ठीक है, और आप देखें कि H2SO4 के सिंगल मोल पर ही HI की जितनी अमाउंट ज्यादा होती जाएगी उतना ज्यादा बेचारा ऑक्सीडाइज होता चला जाएगा फर्दर इनटू अदर पार्ट्स। In all these parts, we are forming iodine. Apart from that, we form sulfur dioxide and sulfur and then H2S, जिस पे आपको उसकी ऑक्सीडेशन नजर आ रही है, ठीक। तो नोटिस करें कि पहले में ऑक्सीजन साथ है, दूसरे में ऑक्सीजन भी डिप्राइव हो गया, तीसरे में उसके अंदर H2 ऐड हो गया, तो हम सिर्फ फर्दर H2SO4 अपना काम दिखा रहा है, ठीक है। सल्फर येलो सॉलिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ऑफ बैड एग, ठीक है। ये वॉमिट इंड्यूसिंग किस्म की बहुत गंदी स्मेल होती है। दिस इज समथिंग दैट यू रिमेंबर फॉरएवर इन योर लाइफ। इतनी गंदी स्मेल होगी कि लैब में कोई और स्मेल इसकी इक्विवेलेंट नहीं जाएगी, सो यू गोना रिमेंबर इट, ठीक है। वेल, iodine produce violet purple vapors, ये भी आपको आइडिया है, so there are many observations over here that we can quote. Therefore NABR या NAI आपके पास mixture of gases produce करते हैं, toxic gases, so whenever reacted with concentrated sulfuric acid, तो ये इन्हें प्रिपेयर करने का हरगिज अच्छा मेथड नहीं है। ये ये ऐसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन कि ये प्रिपेयर करने का अच्छा तरीका नहीं है, आपको बिल्कुल पास्ट पेपर में फ्रॉम 2008 टू 2014 कॉमनली मिलेगा। अब वो क्वेश्चन उस तरीके से आना बंद हो गया। आफ्टरवर्ड यू नोटिस कि वो कंडीशन सॉरी जो उसके आउटकम्स होते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड पे वो पूछ लेते हैं और उससे ज्यादा नंबर के हिसाब से कोट कर देते हैं। बार बार इसी सवाल को इसी वर्ड में पूछने का तरीका काफी टाइम से अब नहीं यूज हो रहा, ठीक। Since the question has become too common, so Cambridge starts replacing it with different other clever words to come with or to manipulate the question. So it's easier to oxidize the hydrogen that's going down the group. ये हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। HCl ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सका डाउन द ग्रुप का, HBr हमने एक फर्दर इक्वेशन दे दी, डाउन द ग्रुप का आयोडीन हमने 3 और फर्दर ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशंस दे दी, which means it was of course easier to oxidize them if you go down the group, ठीक है। इन रिएक्शंस में ब्रोमाइड आयंस या आयोडाइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। ब्रोमाइड या आयोडाइड आयंस इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, सिंस इनके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और दोबारा ये खुद बजाते खुद ऑक्सीडाइज होकर, रिड्यूसिंग एजेंट से तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, तो ऑक्सीडाइज होकर जीरो स्टेट में आ जाते हैं और ब्रोमीन और आयोडीन में प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाते हैं। हेंस द violet purple vapors और hence the reddish brown gas, ठीक है, irrespectively. Halide ions increasingly effective होते हैं reducing agents के तौर पे अगर हम down the group जाएं। तो नोटिस कर लें कि टॉप द ग्रुप हमने ने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा था, डाउन द ग्रुप जाते जाते हम कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहते, ठीक है। और तब हमने उन हेलोजेंस की बात की थी, अब हम हेलाइड आयंस की बात कर रहे हैं, वो डाउन द ग्रुप जाते जाते अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स बन जाते हैं। अब याद रखिएगा कि ये दो डिफरेंट बातें हैं, हम इसको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। उसी तरह से हम इनको इसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप ये जो रिड्यूसिंग एजेंट का इफेक्ट है ये इंक्रीज हो रहा है। ये सेपरेट बातें हैं, दोनों याद रखनी है, दोनों पास पेपर्स में मैनिपुलेट हुए हुए हैं प्रॉपरली। बीट पेपर 1 पेपर 2 उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये बात पूछी होती है। नेक्स्ट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक ही स्पीसीज एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली
रिड्यूस भी हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है। इसे सेल्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन की एक ही एग्जांपल आपके कोर्स में एग्जिस्ट करती है और वही एग्जांपल पास्ट पेपर्स में रिपीटेडली आई हुई है, एंड दैट एक्चुअली गोज विद अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो उसी एग्जांपल को हम डिफरेंट तरीके से दो मरतबा कर रहे होंगे। क्लोरीन को अगर हम कोल्ड अल्कली 15 डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हो रिएक्ट, तो वो जैसे मैंने पहले एक कंपाउंड भी बोला जिसमें क्लोरीन का हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्कस किया था, तो एग्जैक्टली वो वाली चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, क्लोरीन OH नेगेटिव आयंस के साथ सोडियम, तो इसमें स्पेक्टेटर आयंस वुड नॉट इवन कंसीडरिंग दैट फॉर आयनिक इक्वेशन। ठीक है, बाकी आप नोटिस करेंगे हमने लिखा हुआ इसी तरह से। तो क्लोरीन जो है वो -1 और +1 दोनों में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है एट द सेम टाइम टू अ सिंगल स्पीसी। अगर इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकालना हो तो वो ऐसे हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकालना हो तो वो इस तरतीब से हो जाएगा। आप नोटिस करें इस पूरी इक्वेशन में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल के लिखना ये काफी नहीं है। समटाइम्स बच्चे कहते हैं कि अगर रिडक्शन इस तरह से हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में हम ये कर सकते हैं कि इसको दूसरी साइड पे दूसरी तरह लिखते हैं और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दें। नो, यू हैव टू टेक द rest of the equation and to complete it, because ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हाफ इक्वेशन को ऐड किया जाए तो ओवरऑल इक्वेशन भी आनी चाहिए। अब जब बच्चे ये वाला हिस्सा एग्जाम में देखते हैं, वो एक लम्हे के लिए दूसरा हिस्सा भूल जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो Cl2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है वो रिमूव करते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। तो अगर आप ये लिखते हैं कि आप इसे पॉजिटिव कर देंगे और +1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और ये ठीक हो जाएगा, नो, दिस इज ऑल अगेन रॉन्ग। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन मिलाकर अगर लिखें तो ये वाली इक्वेशन आयनिक इक्वेशन बननी चाहिए। और अगर आप ये दोनों मिला के लिखेंगे जो मैंने लिखे हैं, आयनिक इक्वेशन नहीं बनती आपके ऊपर, which means you have definitely made a mistake। तो इसमें याद रखना इक्वेशन का मेजर पार्ट और बाकी सारे कंपोनेंट उसकी ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में आते हैं। ये इस मिस्टेक से बचना है। एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो पता चलता है ये मिस्टेक सबसे ज्यादा की हुई है बच्चों ने। ठीक है, बहरहाल अगर आप पास्ट 5 years पेपर्स देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे द क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल अबाउट दिस मिस्टेक, क्योंकि वो बहुत अरसे से इस मिस्टेक को केटर करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हैव ग्रोन एक्चुअली वाइजर अबाउट दिस मिस्टेक एंड नॉट मेकिंग द मिस्टेक एनी मोर। तो अगर आप पिछले 5 सालों के पेपर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ अल्कली के बारे में है, हॉट या कोल्ड टेम्परेचर हो गया, एंड अगेन उसके डिफरेंट रिजल्ट्स के बारे में। रिसेंटली पास्ट 5 years में जो डिस्कशन है वो ये है कि यहाँ पर क्लोरीन की कंडीशन कुछ और यहाँ पर क्लोरीन की कंडीशन कुछ और है। ठीक है, इसके अलावा एक और सिनेरियो रेयरली एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें दिया हुआ है, इंड्यूस किया हुआ है कि आप क्योंकि आपकी बुक नहीं बताती, आपके पास NaClO बनता है, NaClO3 भी बनता है, लेकिन टू हार्शर कंडीशंस वी कैन एक्चुअली चेंज इट टू मोर, हमें NaClO5 तक भी ले जा सकते हैं। एक आधा मेरा ख्याल है मैंने ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा है जिसमें NaClO5 है और बाद में वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर बहस कर रहा है। ठीक है, तो या दैट इज पॉसिबल, +1 से +3 या +3 से +5 तक जाना ये पॉसिबल हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन से हट के वो बात कर रहा होगा। लेकिन +3 तब बनेगा जब आप NaClO2 बनाएंगे। तो अगर वो सिनेरियो कोई सेट बिल्ट सिनेरियो ऐसा दे दे और फिर उसकी स्टेट पूछ ले क्लोरीन की और वो आपके पास कैलकुलेशन के हिसाब से +3 आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, यू कैन ऑब्वियसली आंसर द क्वेश्चन। बिल्ट अप सिचुएशन या मेड अप सिचुएशन जरूर आती हैं कैम्ब्रिज में। इन दैट केस सिंपली कैलकुलेट, क्योंकि याद रखें कि कैम्ब्रिज आपसे क्वेश्चन फिर भी वही करेगी जो उसने सिखाया हुआ है। ये बात नहीं वो पूछेंगे NaClO2 कैसे बन गया। ठीक है, हाँ ये बात तो जरूर कर सकते कि इसमें Cl की स्टेट क्या है। नाउ सिंस यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस स्टफ, यू शुड बी एबल टू टेक इट आउट कि आपको ये +1 है, ये -2 ही होगा, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं इसका आंसर +3 आता है, तो यू शुड नो हाउ टू कंसिडर दिस। ठीक है, फिर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहस करना, ठीक है, या डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रूव करना, इट शुड बी अ प्रॉब्लम व्हिच हैव बीन pattern of question in past 5 years, if I be exact। ठीक है, तो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर हम कॉमनली कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन वाटर सप्लाई में, तो ये बैक्टीरिया को किल करती है, वाटर को सेफर टू ड्रिंक करती है। ठीक है, वेल दिस वाज अ पास्ट हैबिट, वी आर स्लोली गेटिंग रिड ऑफ दिस हैबिट बिकॉज अब हमें ऐसा ऐसा अंदाजा हो रहा है कि कार्सिनोजेनिक हो गया हो रहा है।
लेकिन ये चूंकि इस बुक में नहीं मेंशन, आपकी कुछ एक आधी रेफरेंस बुक में मेंशन है, पास्ट में भी ऐसे सच नहीं पूछते तो हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं बच्चे को, लेकिन कैसे नहीं है कि अनटिल नीड हो तो मेंशन करें वरना ना करें, ठीक है। तो HClO या क्लोरिक 1 एसिड, इसमें ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होता है क्योंकि वाटर को स्टेरलाइज कर सकता है, ठीक है। इसमें ClO नेगेटिव हैं, ये स्टेरलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी बिहेव करते हैं। डोंट फॉरगेट प्री रिक्विजिट, ClO नेगेटिव को हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे IGCSE में पढ़ चुके होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम इसे बैक्टीरिया किलिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं, हम इसे ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी यूज कर रहे हैं, विच ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास ब्लीच बनाने के काम आता है। ये जो NaClO है या HClO है, ठीक है, ये हमारे पास ब्लीच के तौर पे भी यूज होते हैं। तो ऐसे पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ब्लीच बनाने के लिए इसने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से बात स्टार्ट की हो और बाद में फिर ये वाली डिस्कशन शुरू की हो, which actually finishes the whole chapter. Any questions?